Shall we start? Okay, so you should be ready with your classwork book and your pen. And I am sending the textbook to you. Can you see the textbook in your screen? All of you? Okay. आएगा बट आपका नेटवर्क स्लो होगा ना तो थोड़ी देर में विद इन अ मोमेंट इट विल रीच यू. या फिर आप दूर रहते होगे तो रास्ते में ट्रैफिक जैम होगा तो भी पहुंच जाएगी. डोंट वरी. आ गया? Okay. And I think we were in the last paragraph of this page. Yes? Okay, let us start. So we were learning about the organs of the government. Okay, how many are there in a government? 3 organs. Very good. Which is the first one? Legislature. And what is the function of legislature? To make laws. Very good. Then second one? Executive, which implements the laws. Very good. And the third one is judiciary, which yes, which punishes the people who break the laws. Very good. Okay. Now the same thing is given to us in a form of a beautiful flow chart in the next page. But before that, let us see the last paragraph of this page. Which was the last meaning you had written? Okay, federal meaning union. Fine. See the last paragraph? The governor is also the part of state government. In fact, governor is the main head of the state government. And I think you remember who is the governor of Gujarat? Do you remember? Yes, he is Acharya Devrat. So Acharya Devrat, or we can say governor, is the head of any state. He comes as the first position. And who comes at the second position in a state? Chief Minister. And who is the Chief Minister of Gujarat currently? Vijay Bhai Rupani. Very good. Chalo. And the state of Gujarat is only the lower house, that is legislative assembly. Most of the states do not have a legislative council. Now, if you remember, we discussed this last time that legislature is the body which makes laws. Okay? And it is divided into two houses, lower house and upper house. All the states should compulsorily have the lower house, but upper house it is not compulsory. Those states which require the upper house will have it, otherwise they can skip having the upper house. And most of the states in India have only lower house. If 7 states hai, there are only 7 states who have the upper house. Other all the states have only one house, and that is the lower house. Lower house is also known as legislative assembly in English. In Hindi it is known as Vidhan Sabha. Upper house is known as legislative council. In Hindi it is known as Vidhan Parishad. Any doubts up to now? Anybody? Shall I turn the page? Okay, now whatever we learned in the whole chapter, पूरे चैप्टर में हमने जो भी लर्न किया, everything is given to us in a form of a small flow chart, and that makes our remembering activity very easy. Can you see the flow chart over here? Okay, now it is based on the state government. Okay, now state government is the second level of the governments. तो फर्स्ट लेवल में कौन सा गवर्नमेंट आता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट, और थर्ड लेवल पे local self government. Very good. All of you are giving very speedy answers. Very good. Okay. So state government, who is the head of state government? Governor. And very good. And the state government is three organs: legislature, executive, and judiciary. ओके, अब लेजिस्लेटर, अब हमने ये भी किया था दैट एक्चुअली लेजिस्लेचर इज अ बॉडी, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, वो खुद कुछ काम नहीं कर सकता. द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज. पिकनिक वाला एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेम्बर. 7B इज गोइंग टू द पिकनिक, मतलब क्लास को उठा के बस में नहीं डालेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ 7B आर गोइंग टू द पिकनिक. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? राइट. तो सिमिलरली लेजिस्लेचर मेक्स लॉज मीन्स लेजिस्लेचर खुद नहीं बनाता, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर मेक द लॉज. तो वो मेंबर्स कौन है? लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स. सिमिलरली एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज, मतलब एग्जीक्यूटिव खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज. और वो मेंबर्स में कौन है? चीफ मिनिस्टर एंड हिज टीम. चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, ठीक है, उस टीम को बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब चीफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं? ही इज द हेड, राइट. और उनके अंडर में उनका पूरा कैबिनेट होता है, काउंसिल होता है, जिसमें एक को देंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक को फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एक को फॉरेन अफेयर्स, एक को वाटर, एक को इलेक्ट्रिसिटी, लाइक दैट. तो ऑल दीज पीपल who help the chief minister in executing the law are known as council of ministers. I hope I am clear. Yes, and the third body is judiciary. Judiciary punishes the people who break the laws. तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, और अगर विलेज में रहते हो तो आप जाओगे लोक अदालत, पंचायत में. ओके, so these are the this is the flowchart which gives you a clear picture of the working of the state government. Any doubts? Anybody? हाँ, बोलो बोलो, what was your doubt? Yes. Now, president. Yes, president is also human being. वो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट. तो उसके लिए ही कैन गेट सजेशंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, प्लस ही कैन ऑल्सो टेक सजेशंस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ये जो हमारा हाई कोर्ट है ना यहाँ पर, वो तो स्टेट लेवल पे है. हमें पता है कि गवर्नमेंट कितने लेवल पर है? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल, ठीक है. तो सेंट्रल लेवल का जो जुडिशियरी है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट. शायद नाम तो आपने सुना ही होगा. तो सुप्रीम कोर्ट हैज अ पैनल ऑफ 15 जजेस. वहां पर 15 जजेस साथ मिलके डिसीजंस लेते हैं, और वो 15 जजेस का एक होता है हेड. दैट हेड इज नोन एज द चीफ जस्टिस. Okay, so chief justice can give suggestions to the president in case if the president is confused at some stage. Am I clear, all of you? Okay, any other doubts? Yes, beta. Okay, now at the end of the page you can see a small box given things to know. Some information is given to us. Okay, see the title. Before a bill becomes a law, it undergoes 3 readings. Right? Now, ये read करने से पहले I will just give you a small example. Okay? Suppose take an example कि आप लोग स्कूल में जाते हो. एक जमाने में जाते थे, याद है ना, पिछले जन्म की बातें याद आ रहा है? हाँ. तो उस जन्म में क्या होता था कि आप स्कूल पे जाया करते थे. फिर अगर याद है तो रिसेस में कभी कभी आप पानी पूरी बनाने का भी प्लान करते थे. याद आ रहा है कुछ? राइट. तो हाँ,
ऐसा तो था नहीं, ऐसा तो था नहीं कि आपने आज प्लान बनाया कल पानी पूरी बना ली। थोड़ा डिस्कशंस होता है, थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होती है, फिर वर्क को डिवाइड किया जाता है कि ये दो स्टूडेंट्स पानी लाएंगे, ये दो स्टूडेंट्स पूरी लाएंगे, ये दो बॉइल्ड पोटैटो लाएंगे, ये चना लाएंगे। तो वर्क को आप डिवाइड करते थे, है ना? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट व्हेनेवर यू मेड अ प्लान, तो जब आप सोचते हो, सिर्फ आपके माइंड में आता है कि चलो नेक्स्ट सैटरडे हम पानी पूरी बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल। हम जो चीजें लेते हैं उसका बिल नहीं, बिल मतलब अ रफ कॉपी, जिसको सिविक्स में हम बोलते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, एक अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी फाइनल भी नहीं हुआ, जस्ट यू हैड अ थॉट इन योर माइंड दैट वी वांट टू मेक अ पानी पूरी। तो आप उसको जो रफ में एक प्लान बनाते हो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ बिल। ठीक है, अब ये जो बिल है वो 3 स्टेजेस में से पास होगा। अगर वो तीनों स्टेजेस में से पास हो जाएगा, देन द बिल विल बिकम अ लॉ। जो हमने पढ़ा था ना कि लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, तो लेजिस्लेचर कैसे लॉज बनाता है? फर्स्ट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, दैट इज अ रफ कॉपी, देन इट पासिस थ्रू फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज पास करने के बाद लॉज बनते हैं। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ओके, अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं, पानी पूरी वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज टेक एन एग्जाम्पल, भव्या के माइंड में आया कि सैटरडे को हम पानी पूरी बनाएंगे। तो भव्या क्या करेगी? अब बिकॉज भव्या, हमने यहाँ पर किया था ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरी टीम में से एक मिनिस्टर को ऐसा आइडिया आया। ठीक है, तो ये मिनिस्टर हो गई भव्या। अब भव्या क्या करेगी? स्टेज नंबर 1, रिसेस में when all the students are sitting together, they will make a plan, they will make a discussion. ओके, फिर उसमें से होगी मेजोरिटी कि अगर आपके क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, उसमें से 18 स्टूडेंट्स बोलते कि हाँ चलो बनाते हैं, तो फर्स्ट स्टेज क्लियर। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? एनी डाउट इन फर्स्ट स्टेज? ओके, लेकिन अगर 20 में से सिर्फ 3 लोग बोलते हैं कि हाँ बनाएंगे, बाकी के 17 ना बोल रहे, तो फर्स्ट स्टेज में ही द कैंसल्ड, द बिल इज कैंसल्ड इन द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ, नथिंग विल बी डूइंग। समझ में आ रहा है? फिर भव्या कोई और प्लान लेके आएगी कि चलो पानी पूरी नहीं बनाते, भेल बनाते हैं, फिर वापस डिस्कशन, वापस 3 स्टेजेस। ये तो अगर नो होता है तो की बात है, लेकिन अगर यस होता है तो फर्स्ट स्टेज इज क्लियर। एनी डाउट इन फर्स्ट स्टेज? ओके, अब आप लोग क्या प्लान करोगे सेकेंड स्टेज के लिए? कि चलो हम लोग 7th A के स्टूडेंट्स को भी पूछते हैं, इफ दे वांट दे कैन आल्सो ज्वाइन अस, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो योर फ्रेंड्स, राइट? तो अभी गडारा क्या करेगा? गडारा का एक फ्रेंड 7th A क्लास में है, तो उसको फोन करेगा कि हम लोग प्लान कर रहे हैं, आप लोग सोच लो, अपने अंदर अंदर डिसाइड कर लो, देन टेल अस। गॉट इट? तो अभी 7th A में भी 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी डिस्कशंस होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और मेजोरिटी में 17 स्टूडेंट्स आर देयर, तो उनका भी यस आ गया, सेकेंड स्टेज ऑल्सो क्लियर्ड। समझ में आ रहा है? Okay. अब यहाँ इंस्टेड ऑफ 17, ओनली इफ 5 स्टूडेंट्स से यस, देन सेकेंड स्टेज कैंसल। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है, आप लोग तो क्या करोगे कि चलो 7th A वालों को नहीं बनाना है, छोड़ो, हम 7th B वाले बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, दैट इफ सेकेंड स्टेज इज कैंसल्ड, देन फर्स्ट स्टेज ऑल्सो गेट्स ऑटोमेटिकली कैंसल। 7th A वाले ज्वाइन नहीं होते तो 7th B वाले भी पानी पूरी नहीं बना सकते। ओनली इफ बोथ द हाउसेस give the majority
then only the second stage is cleared. Any doubts in second stage, anybody? Okay. Now comes the third stage. इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आपके क्लास टीचर की. ठीक है. अगर क्लास टीचर बोलते हैं कि यस यू कैन मेक, तो थर्ड स्टेज क्लियर. इफ शी सेज नो यू कैन नॉट, द थर्ड स्टेज फेल. तो फर्स्ट स्टेज में देर इज डिस्कशन अमॉन्ग 7B स्टूडेंट्स. सेकेंड स्टेज देर इज डिस्कशन अमंग 7A स्टूडेंट्स. एंड थर्ड स्टेज में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आइदर यस और नो. यस है तो पूरा बिल पास हो गया, नो है तो पूरा बिल फेल हो गया. एम आई वेरी क्लियर? ठीक है. नाउ लेट्स गो टू पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में एक रूल बनाना है कि ऑल द पीपल इन अवर कंट्री विल वेयर अ मास्क कंपल्सरीली. ठीक है. अब पानीपुरी वाला प्लान भव्या ने बनाया था, तो भव्या ने अंदर अंदर थोड़ा ये भी डिसाइड किया था कि 4 लोगों को पूरी लानी पड़ेगी, 2 लोगों को मीठा पानी लाना पड़ेगा, 3 लोगों को तीखा पानी. दिस वॉज रफ प्लान. मैंने आपको बोला था ना रफ वाला, याद आ रहा है? रफ ड्राफ्ट. ओके. तो ऐसे ही एक मिनिस्टर को दिमाग में ऐसा आया कि हम लोग मास्क कंपलसरी कर देंगे. इससे क्या होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत वो जो कोरोना स्प्रेड हो रहा है वो कम हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ अगेन वी नो दैट देयर आर 2 हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. ये तो आपको पता है ना, लोअर हाउस एंड अपर हाउस. ओके. तो एक मिनिस्टर था जिसका नाम था मिस्टर ए. मिस्टर ए को ऐसा आइडिया है कि वी शुड मेक मास्क कंपलसरी. अब वो अकेला बोलेगा तो पूरी कंट्री या पूरा स्टेट तो नहीं मानेगा. वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, राइट? तो देयर विल बी अ डिस्कशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली दैट दिस बिल, अभी तो वो ड्राफ्ट है, रफ कॉपी में, इसलिए बिल, दिस बिल विल बी डिस्कस्ड. वो खुद पहले अपना आइडिया प्रेजेंट करेगा, बाकी के सब क्वेश्चंस करेंगे कि बच्चों को पहनाना है कि नहीं, पेशेंट्स को पहनाना है कि नहीं, अगर नहीं पहनते हैं तो क्या करना है, पहनते हैं कि नहीं वो चेक कौन करेगा. तो इसके पास सभी आंसर्स होने चाहिए मिस्टर ए के पास. ओके. देन आफ्टर द क्वेश्चन आंसर राउंड, इफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थिंक कि ये आइडिया तो अच्छा है, तो अंदर अंदर डिस्कशन करेंगे, राइट? उसके बाद होगी मेजोरिटी. अब जैसे ही यहाँ पर मेजोरिटी क्लियर हो जाती है, फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड. इसको बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग. क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज फर्स्ट रीडिंग. नाउ एज द फर्स्ट रीडिंग इज क्लियर्ड, the bill will go to the second house, that is legislative council. Here also the same procedure will be followed. There will be discussions, there will be suggestions, there will be question answers, there will be arguments. At the end there will be majority. If the majority supports, then this is known as second reading. समझ में आ गया? Now after legislative assembly and legislative council pass the bill, then it will go to the governor, जो कि है हेड ऑफ द स्टेट. ओके. तो उसको क्या करना है, सिर्फ यस या नो बनाना, बोलना है. पानीपुरी का प्लान तो बन गया, कौन क्या लाने वाला है वो भी डिसाइड हो गया. क्लास टीचर को सिर्फ यस और नो बोलना है. ओके. सो गवर्नर गोज थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द बिल, राइट? Then the government has only 2 answers, either yes or no. If he says yes, then the bill is passed and it becomes an act. And if he says no, then everything is cancelled. So this is how a bill becomes an act after passing through 3 stages. Is the whole process very clear, all of you? ओके. अब ये स्टेट गवर्नमेंट है, जस्ट अ मिनट बेटा, बिकॉज दिस इज स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पर होगा
लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. बट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, बट लोकसभा एंड राज्यसभा होंगे, इससे बड़ा यूनिट. समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? ओके, व्हाट वाज योर डाउट? किसको डाउट था, बोलो बेटा. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको इलेक्ट किसने किया है? हमने किया है. वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी. पीपल हैव गॉट द सुप्रीम पावर. तो सारे के सारे पीपल जो है 135 करोड़ पीपल, वो तो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते. तो व्हाट हैव द पीपल डन? द पीपल हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और हमारे बिहाफ में वो लोग पार्लियामेंट में बात करेंगे. समझ में आ रहा है? राइट. तो इनडायरेक्टली हम ही ने बात किया. राइट. सो द सेम प्रोसेस इज फॉलोड. सपोज अगर आपका एक फ्री लेक्चर है और आप चाहते कि हमें ये लेक्चर में गेम्स खेलना है, तो आप 20 के 20 स्टूडेंट्स नीचे जाओगे परमिशन लेने कि सिर्फ मॉनिटर जाएगा? सिर्फ मॉनिटर. बट मॉनिटर अगर ये आता है तो मॉनिटर अकेला गेम्स में नहीं जाएगा. मॉनिटर इज ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स. तो सिमिलरली ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो हमारे बिहाफ में काम करते हैं. अगर उन्होंने यस बोला, मतलब वो हम सब का यस है, क्योंकि हमने उसको वोट देके इलेक्ट किया था. डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लेट अस डू द रीडिंग पार्ट. जो भी मैंने समझाया ना, वो 3 लाइन में सब उसने दे दिया है. यस बेटा. Before a bill becomes a law, it undergoes 3 readings. Undergoes means it passes. चलो, ये होगा हमारा नेक्स्ट मीनिंग. अभी कितनी देर से कुछ राइटिंग वर्क नहीं किया है, चलो अभी लिखो. Undergoes meaning passes. किसी का undergoes, किसी का माइक चालू बंद करो. देखो, आई हैव अंडरलाइंड इट. The meaning is undergo, the word is undergoes, meaning is passes. Return. Okay, I'll zoom in again. हाँ बोलो बेटा, what is the doubt? So, discussions regarding, bill becomes a law, it undergoes 3 readings. First reading, discussions regarding principles underlying the bill. बिल में क्या क्या करना है वो. Second reading, minute and serious discussion. And third reading, act wise discussion. Act wise मतलब point wise. हर एक point का discussion होगा. Okay? I think you have understood the process very well. Okay. Then see the second thing. To become a member of the Legislative Assembly, one must be an Indian citizen and must not be less than 25 years of age. ये आ गया क्वालिफिकेशन कि अगर आपको विधानसभा का मेंबर बनना है, if you want to join the Legislative Assembly, then you should satisfy 2 conditions. Number 1, you should be an Indian citizen. Second, your age should be 25 or more. Any doubts? Any doubts? Okay, number 3. According to the Constitution of India, the number of members in the Legislative Assembly must not exceed 500 and not be less than 60. मतलब आपको पता है कि all the states are of different sizes. कोई स्टेट इतना सा है जैसे कि गोवा, और कोई स्टेट इतना सा है जैसे कि राजस्थान. राइट. चलो स्टेट को छोड़ो, टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लास. सपोज आपके क्लास की स्ट्रेंथ है 20 स्टूडेंट्स, तो 2 मॉनिटर्स आर इनफ फॉर द क्लास. लेकिन अगर किसी क्लास की स्ट्रेंथ 80 है, तो यू नीड 5 मॉनिटर्स. यस और नो? अगर किसी क्लास की स्ट्रेंथ 10 है तो सिर्फ 1 मॉनिटर चलेगा. तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द क्लास, द मॉनिटर्स विल बी डिसाइडेड. Similarly, based on the size of the state, the members of legislative assembly will be decided. कि
एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज. बट मतलब कितनी भी साइज हो, द नंबर इज डिसाइडेड, इट इज मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 500. कोई भी स्टेट इतना बड़ा नहीं है कि आपको 500 से ज्यादा मेंबर्स चाहिए, और कोई स्टेट इतना भी छोटा 60 से लेस चाहिए. So in short, based on the size of the state and based on the population of the state, the number of members in a legislative assembly should be between 60 to 500. Is this point clear, all of you? Okay. One more thing. Suppose if you want to become the governor of the state, governor कौन है? आचार्य देवव्रत. मत, वो तो पता है आचार्य देवव्रत, पर उसकी पोजीशन, अरे नाम नहीं पूछ रही, उसकी पोजीशन क्या होती है स्टेज में, स्टेट में? हेड ऑफ द स्टेट. ओके. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आगे जाके आई ऑल्सो वांट टू बिकम द गवर्नर, ठीक है, तो सेटिस्फाई सम ऑफ द कंडीशन. अगर आपको गवर्नर बनना है तो व्हाट शुड बी योर क्वालिफिकेशन? द गवर्नर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट. फर्स्ट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट. He or she is the constitutional head. Constitution मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊपर. The entire administration of the state runs under his or her name. जैसे मैंने बोला था कि अगर गवर्नर yes बोलता है then only a bill becomes an act. याद आ रहा है? और अगर गवर्नमेंट no बोलता है then the bill is cancelled. तो पूरा स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, it runs on the name of governor only. He or she as the representative or of the president. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सबसे ऊपर हेड है, सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में द हेड इज द गवर्नर. राइट. तो जैसे प्रेसिडेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नर रिप्रेजेंट्स द स्टेट. These are the functions of a governor who is the head of the state. Is it very clear, all of you? Okay. Any doubts? Anybody? Okay. Here we end the chapter, and I don't think now we have more of the time. लेकिन थोड़े से अभी थोड़े इंस्ट्रक्शन मुझे आपको देने हैं, तो आप खास ध्यान से सुनो वीडियोस ऑन करके, ताकि मुझे आपके फेसेस दिखाई दे कि आप समझ रहे हो कि नहीं. देखो नमन को तो बहुत मजा आ रहा है ना. नमन इज राइटिंग इन द कमेंट कि फिफ्थ जैसा मजा आ रहा है. वेरी गुड नमन, यू आर एंजॉइंग. ओके फाइन. चलो, नाउ you know that we have already completed 3 chapters, but exercise portion is not done at all. हमने अभी राइटिंग वर्क कुछ नहीं किया है. राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर द वर्कबुक. वर्कबुक एक्सरसाइज जो है वो अभी हम क्लास वर्क में ही शुरू कर देंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. एम आई वेरी क्लियर? तो अभी थोड़े टाइम के लिए एक्सप्लेनेशन बंद, राइटिंग वर्क शुरू. मतलब मेरा काम कम, आपका ज्यादा. चैप्टर 1, 2 और 3 का एक्सरसाइज पोर्शन हम लोग पहले कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, सो दैट इन केस इफ अ टेस्ट अराइव्स तो आपके पास रीडिंग मटेरियल होना चाहिए. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? So next lecture we will be starting the workbook exercise part in class workbook. Clear? Clear? Anything you want to ask? Anybody? Okay, so next lecture be ready for writing work. Fine? Okay. Shall we end the session? मेरे पास तो है टेक्स्ट बुक वर्कबुक दोनों है.